Hello children, I welcome all of you to my YouTube channel. Today we'll be discussing chapter number 5 of the book Hornbill class 11 CBSE, and the title of the chapter is The Ailing Planet, the Green Movement's Role, written by Nani Palkiwala. So my dear children, before we discuss this chapter in detail, let us discuss about the writer. Nani Palkiwala, his actual name was Nani Boy Palkiwala, was born on 16th January 1920 in Bombay, that is now Mumbai, to a middle class Parsi parents. He was a jurist and an economist. He died on 11th December 2002. So my dear children, he was a very famous jurist. Jurist means an expert of legal studies, or in other words you can call a legal scholar. एक ऐसा व्यक्ति जिसे लॉ के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है या नॉलेज है, वी कॉल देम लीगल स्कॉलर्स. And at the same time he was an economist also, and ultimately he died on 11th December 2002. For some years he was the Indian ambassador to the United States of America also. Now in this chapter we will discuss about the deteriorating condition of our planet. This chapter talks about the problems faced by our planet and reasons for its poor condition. And at the same time, this chapter also speaks about the changing view of the world for this planet. So let us discuss this chapter in detail. The following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24 November 1994. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. So basically this chapter is an article, and this article was written by Nani Palkiwala, and it was published in the newspaper The Indian Express on 24th November 1994. And this article is about the declining health of the earth, and still the condition persists. Still you can see the condition of the earth is not very good. Now we will discuss this chapter line by line. One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. Now, in the initial lines, the writer says that one movement was started some 25 years ago, and he is writing this article in the year 1994. Okay? So somewhat in the year 1972. So in the year 1972 there was a movement that started in New Zealand, and that movement was Green Movement. और ये जो ग्रीन मूवमेंट 1972 में शुरू हुआ था न्यूजीलैंड में, उसके पहले ऐसा कोई भी मूवमेंट पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं हुआ जिसने इंसान की सोच को बदल दिया हो, इंसान की मानसिकता को बदल दिया हो. ओके, और ये पहला ऐसा मूवमेंट है जहां से एक सोच में बदलाव देखने को मिला, इंसान की सोच में, लोगों की सोच में, किसके प्रति, टुवर्ड्स दिस प्लैनेट, टुवर्ड्स द अर्थ. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. We have shifted
one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. So the writer says that in the year 1972, this green movement was started in New Zealand, and since then, उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी. We have shifted, one hopes irrevocably, from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. और एक उम्मीद की तरफ हम बढ़े हैं, एक चेंज की ओर हम बढ़े हैं, ठीक है, जिसको पहले ये माना जा रहा था इररिवोकेबल है, मीन्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, लेकिन अब नाउ इट इज गोइंग टू बी चेंज्ड. अब ये चेंज हो रहा है, एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है. फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू, पहले हम इस अर्थ को, अपने इस प्लैनेट को एक मशीन समझते थे और हम उसे मशीन की तरह ट्रीट करते थे. बट अब हमारी जो व्यू है, हमारी सोच है अर्थ के प्रति, अब वो ये नहीं है कि अर्थ एक मशीन है, बट रादर वी आर टेकिंग इट एज ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू. होलिस्टिक मीन्स ऑन ए होल, पूरे अर्थ को हम एक मान रहे हैं और इकोलॉजिकल व्यू से देख रहे हैं. व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजिकल व्यू? इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में. तो एक सोच हमने अपनी बदल दी है. अर्थ को जो हम मशीन समझ रहे थे, अब हम उसे मशीन नहीं समझते, बल्कि रादर हम उसको क्या मान के चल रहे हैं, एक प्रकार से वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. जैसे कि हम इंसान हैं, वैसे अर्थ भी एक प्रकार से वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. दैट इज द रीजन कि द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इटसेल्फ सेज द एलिंग प्लैनेट. द एलिंग मीन्स व्हाट? बीमार. somebody who is sick, somebody who is ill. और बीमार कौन होता है? या तो कोई इंसान हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, बर्ड हो सकते हैं, पक्षियां हो सकती हैं बीमार. और यहाँ पर अर्थ को भी बोला जा रहा है कि वो बीमार है. राइटर अर्थ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं. इट इज ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolve around the sun. और ये जो बदलाव लोगों की सोच में आई है, ठीक है, इसे इट इज बेसिकली रेवोल्यूशन. ये एक प्रकार का जो क्रांति है, क्योंकि इंसान की सोच में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है. और अगर इंसान की सोच में बदलाव आएगा तो बिल्कुल इस धरती का भला हो सकता है, ठीक है ना. और इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? कॉपरनिकस ने. यू कैन सी दिस पर्सन ऑन योर स्क्रीन. ही इज कॉपरनिकस. ही वाज अ वेरी फेमस एस्ट्रोनॉमर एज वेल एज मैथमेटिशियन. और उन्होंने 16th सेंचुरी में ये कहा था कि जो अर्थ है एंड अदर प्लैनेट्स जो भी हैं, मरकुरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, जितने भी हैं, वो सब क्या करते हैं? वो सन के राउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है. इन्होंने ये थ्योरी दी थी. सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम दिस केम इनटू लाइमलाइट. और पहली बार जो है ये बात सामने आई. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो पहली बार पूरे वर्ल्ड में लोगों ने ये माना, एक नज़रिया उनका बदला कि नहीं भाई, धरती भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई मशीन नहीं है वो. एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट. इनॉर्मस बीइंग मीन्स वेरी बिग, वेरी ह्यूज, बहुत ही विशाल चीज़ है धरती, और हम उस धरती के क्या है? एक हिस्सा है. वी आर ए पार्ट ऑफ दैट अर्थ. इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेस which need to be respected and preserved. और जैसे हम इंसानों की हमारी अपनी ज़रूरत होती है, we need food, we need water, okay, we need oxygen, okay, we need other things also to survive in this world. In that same way, इस अर्थ की भी अपनी कुछ नीड्स हैं, मेटाबॉलिक नीड्स. मेटाबॉलिक यहाँ पे मतलब है केमिकल प्रोसेस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ,
ठीक है। तो वो अर्थ की भी कुछ रिक्वायरमेंट है और उसको हमें समझना है। वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट, उसका हमें सम्मान करना है, एंड वी नीड टू प्रिजर्व दैट, और उसको हमें संभाल के रखना है, उसका संरक्षण करना है। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, ठीक है। वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट, साइन मीन्स ऐसे चिन्ह कह सकते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से अर्थ की स्थिति अभी देखने को मिल रही है, उससे ये लग रहा है, जिस प्रकार के हालात हैं हमारे प्लैनेट अर्थ का, वैसा लग रहा है कि वो एक पेशेंट है। पेशेंट मीन्स व्हाट, मरीज, ठीक है, बीमार व्यक्ति। डिक्लाइनिंग हेल्थ, और उसकी स्थिति क्या है, हिज हेल्थ इज डिक्लाइनिंग, हिज हेल्थ इज डिटोरिएटिंग, उसकी जो हालत है, उसकी जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर बनी है। We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation. लेकिन कहीं ना कहीं हम ये समझने लगे, we have understood, we have realized our ethical obligations. Ethical obligations means what? जो हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं, ठीक है ना। हमें पता है ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, देश का सम्मान करना, देश का आदर करना, बड़े लोगों का सम्मान करना, ये सब हमारी एथिकल ऑब्लिगेशंस हैं। वैसे ही धरती के प्रति भी हमारी कुछ दायित्व है, कुछ जिम्मेदारियां हैं। व्हाट इज दैट? टू बी अ गुड स्टेवर्ड। ओके, स्टेवर्ड मीन्स व्हाट? समबडी हु टेक्स प्रॉपर केयर ऑफ, ठीक है, जो किसी चीज़ का ख्याल रखे, किसी चीज़ का देखभाल करे, दैट इज कॉल्ड स्टेवर्ड। सो हम ही हैं जो इस अर्थ प्लैनेट का देखभाल कर सकते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज, ओके, ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन। लेगेसी मीन्स व्हाट? विरासत, ठीक है। तो हम एक तरीके से ये जो धरती है, ये जो इतनी बड़ी विरासत है, इसका देखभाल कर रहे हैं। ट्रस्टीज का मतलब भी क्या होता है? हु लुक आफ्टर एवरीथिंग, हु टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो हमें इस धरती की इस तरीके से देखभाल करनी है कि ये धरती, जो फ्यूचर जनरेशन हमारी आने वाली है, जो आगे की पीढ़ी आने वाली है, उनके लिए हम एक अच्छी धरती तैयार कर कर उन्हें दें, ताकि वो भी एक अच्छी जिंदगी जी सकें। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड इन 1987 by the World Commission on Environment and Development. So in the year 1987, the World Commission on Environment and Development उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, and that concept was sustainable development. Okay, sustainable development का मतलब क्या होता है? Let us find out. In its report, it defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. That is, without stripping the natural world of resources future generation would need. कहने का मतलब ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, इन हिंदी वी कॉल इट सतत विकास। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धरती को इतना भी यूज़ ना कर लें, या जो धरती के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको इतना भी यूज़ ना कर लें कि जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही यूज़ करें। लालच में आकर हम इतना ज़्यादा भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ ना कर लें कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनको प्रॉब्लम हो जाए। जैसे कई बार अक्सर ये बात होती है कि धरती पर से पानी कम हो रहा है, ठीक है ना। इफ़ दिस कंडीशन persists in the coming few years, what will happen? The coming generation will face acute shortage of water, and God knows what will happen. और अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो जो आने वाली पीढ़ी है वो बहुत बड़ी मुसीबत झेलने वाली होगी। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स सबका विकास होना चाहिए, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होना चाहिए, और ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए कि आपका भी हो और जो फ्यूचर जनरेशन आ रहा हो उनका भी डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि आपके डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन उससे फ्यूचर जनरेशन के डेवलपमेंट पर असर पड़ रहा हो। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads, "The world's most dangerous animal." Inside the cage, there is no animal but a mirror where you see yourself. So the writer gives one एग्जाम्पल, वन इंस्टेंस ऑल्सो। वो एक उदाहरण बता रहे हैं कि जाम्बिया जो कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे लुसाका जो जगह है वहाँ पे एक जू है,
और उस जू में जो है एक केज है, एक पिंजरा है, और उस पिंजरे में एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, और उस नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है इसमें। और जब आप उस पिंजरे के पास जाओगे, व्हाट विल हैपन? इनसाइड दैट केज देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ। और उस पिंजरे के अंदर कुछ कोई जानवर नहीं है, बट एक शीशा रखा हुआ है, एक आईना रखा हुआ है, और उस आईने में इंसान जब अपने आप को देखता है तो इंसान को यह महसूस होता है कि अच्छा, दुनिया का सबसे भयंकर जानवर अगर कोई है तो वो इंसान खुद ही है। Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. Now the writer is saying that thanks to all those agencies working in different countries, वो सारी संस्थाओं को जो विभिन्न देशों में काम कर रहे हैं, उनकी जो एफर्ट है, उनकी जो मेहनत है, उसके लिए सलाम है, क्योंकि उन लोगों की मेहनत की वजह से ही आज इंसान भी जागरूक हो रहा है अपनी धरती के प्रति, उसकी सोच बदल रही है। ठीक है, डॉन्ड मीन्स व्हाट, ही इज गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ रेवलेशन, एक प्रकार से जो है उसको किसी चीज की जानकारी प्राप्त हो रही है, इस बात का उसकी आंखें खुल रही हैं, जो अभी तक बंद थी, जो अभी तक वो धरती को मशीन की तरह ट्रीट करता था, अब वो समझ रहा है कि नहीं, धरती की अहमियत क्या है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. अब ये जो इंसान है, ठीक है, अब ये समझ गया है, क्या समझ गया है कि शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। डोमिनेशन का मतलब क्या होता है? सब पर अपना अधिकार जताना। पहले क्या होता था? इंसान हर चीज पर अपना अधिकार जमाता था, चाहे वो धरती हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, सब पर इंसान अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता था। लेकिन अब इंसान भी समझने लगा है कि नहीं, ये सारी चीजें एक प्रकार से पार्टनरशिप में काम होती हैं। अगर हम पार्टनर की तरह इनके साथ ट्रीट करें, काम करें, तभी हम जो है इस प्लेनेट को बचा सकते हैं। अगर हम इनके ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश करें, सो व्हाट विल हैपन? The future will be in big, and it will be in a big trouble. Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. And the scientists, they have made a list. उन्होंने एक लिस्ट बनाया, कैटलॉग्ड का मतलब एक लिस्ट बनाया है, और उस लिस्ट के अनुसार लगभग 1.4 मिलियन, ठीक है, लिविंग स्पीशीज, तरह तरह के जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, बर्ड्स हैं, इस धरती पर रहते हैं, और उन सब के साथ इंसान इस धरती को शेयर कर रहा है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीशीज। बायोलॉजिस्ट्स reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness। और ये भी एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, कई बायोलॉजिस्ट का ये भी कहना है, ये सोच है, रेकन मीन्स दे हैव दिस माइंडसेट, उनके ये सोच है कि लगभग अभी भी 100 मिलियन ऐसे लिविंग स्पीशीज हैं, अभी भी लगभग 100 मिलियन मीन्स लगभग 10 करोड़ 10 करोड़ ऐसे लिविंग स्पीशीज हैं जो इंसान को पता भी नहीं है इस धरती पर है। लैंग्वेज हेयर मीन्स स्टेइंग, रह रहे हैं। अननेम्ड मीन्स उसको किसी ने देखा नहीं है, किसी के सामने नहीं आए हैं, ठीक है। इग्नोमिनिशियस डार्कनेस मीन्स टोटल डार्कनेस, मतलब धरती पर ऐसे करोड़ों प्रजातियां अभी भी मौजूद हैं जिसके बारे में इंसान को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Branded Commission, which had a distinguished Indian as one of its member, Mr. L.K. Jha. The first Branded report raised the question, are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? So एक और इंटरनेशनल कमीशन है जिसका नाम है ब्रांडेड कमीशन, ठीक है। इंटर एलिया मीन्स ये कमीशन का बेसिकली जो काम क्या था वो ये था कि कैसे अर्थ को सेव किया जाए, कैसे अर्थ को बचाया जाए, कैसे अर्थ को जो है हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इंटर एलिया का मतलब होता है
बाकी चीज़ों के साथ साथ, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम ये बोल सकते हैं अमंग अदर थिंग्स। तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है बाकी चीज़ों के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अर्थ को कैसे बचाना है, अर्थ को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों के अलावा एक और क्वेश्चन था। वो क्या था जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन था इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। और वो क्वेश्चन ये था कि क्या हम हमारी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा धरती देने वाले हैं जो स्कॉर्च्ड प्लैनेट है। स्कॉर्च्ड मीन्स वेरी हॉट, ठीक है, ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, और एक ऐसा प्लैनेट जहाँ पे हरियाली देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि क्या देखने को मिलेगा, रेगिस्तान देखने को मिलेगा, इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप्स। इम्पॉवरिश्ड का मतलब होता है वेरी पुअर, ठीक है, वेरी इन ए डिटोरिएटिंग कंडीशन। पहले क्या होता था कि दूर दूर तक अगर आप अपनी निगाहें डालोगे, अगर दूर दूर तक आप देखोगे तो आपको हरियाली देखने को मिलती थी, लेकिन अब समय के साथ साथ दूर दूर तक अगर आप देखोगे तो बंजर भूमि, ठीक है, और अच्छी चीज़ें जो नहीं चीज़ें देखने को नहीं मिलती। और जो एनवायरनमेंट है वो भी कैसा है, एलिंग एनवायरनमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कमीशन जिसमें एक मेंबर जो थे वो हमारे इंडियन ही थे, मिस्टर LK झा, और उन्होंने उस समय उस कमीशन ने एक क्वेश्चन उठाया कि भैया हम जिस प्रकार से इस धरती का केयर कर रहे हैं, या जिस प्रकार से हम धरती को यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उनको हम एक ऐसी धरती देने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा गर्म होगी, जहाँ पे हरियाली देखने को नहीं मिलेगा, रेगिस्तान होगा, जहाँ पे ज़मीन बंजर होगी, और जहाँ का जो वातावरण होगा वो बहुत ही एलिंग होगा। एलिंग का मतलब बीमार होगा, ठीक है। Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological systems are four. And Mr. Lester R. Brown, उन्होंने अपनी किताब में एक बात कही है, and he has pointed out this fact that the principal biological system, Earth का जो principal biological system है वो चार हैं। क्या क्या है? Fisheries, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। बिल्कुल, ये 4 चीज़ें जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं हमारी अर्थ के, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम ऑल्सो। और जो देश, पूरे वर्ल्ड की जो आर्थिक जो एक स्थिति है उसको भी जो है वो इन्हीं चारों पर डिपेंड है, फिशरीज पर, फॉरेस्ट्स पर, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड पर। In addition to supplying our food, these 4 systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. And at the same time ये भी कहा जा रहा है कि फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड, ये 4 चीज़ें हमें तो फूड प्रोवाइड करती ही करती हैं, और हमें फूड प्रोवाइड करने के साथ साथ ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जितनी भी हैं इस वर्ल्ड में, इस पूरे अर्थ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो फर्नीचर बनाती हैं तो उनको रॉ मटेरियल किस रूप में मिल रहा है, लकड़ी के रूप में मिल रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट में लकड़ियाँ काटी जाती हैं वो मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह जो इंडस्ट्रीज़ ऑयल्स, फिश ऑयल आप सब जानते होंगे, फिश ऑयल से बहुत सी कैप्सूल्स बनती हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है फिश ऑयल, ठीक है। तो वो फिश ऑयल कहाँ से हमें जनरेट हो रहा है, वो फिशरीज से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से मेडिसिन्स हैं जहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो हैं, जिसमें हम कुछ पेड़ों की जो है स्टेम्स यूज़ होते हैं, पत्तियाँ यूज़ होती हैं, तो वो कहाँ से, क्रॉप से आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ी जो इनका योगदान है इन चारों, जो फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड का है, ठीक है ना। हाँ, पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स की बात नहीं कर रहे, जो कि ज़मीन के अंदर से जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। बल्कि इसके अलावा बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरतें हैं वो इन्हीं 4 चीज़ों से पूरी होती हैं। In large areas of the world, human claims on these system are reaching an unsustainable level. अब क्या हो रहा है कि दुनिया में लोग एक हद के बाहर जाकर
इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। और ये अनसस्टेनेबल लेवल का मतलब होता है नॉट एबल टू मेंटेन। ये स्थिति ऐसी बनती चली जा रही है कि इसको हम संभाल नहीं पा रहे, ठीक है ना। क्योंकि फिशरीज भी एक एक्सटेंट तक हमें फिशिंग करनी चाहिए, लेकिन हम बियॉन्ड दैट एक्सटेंट जाके फिशिंग कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन हमें एक एक्सटेंट तक ही करना चाहिए, लेकिन हम उसके बियॉन्ड जाके डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। अगर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो एफॉरेस्टेशन भी करना ज़रूरी है। पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ लगाना भी ज़रूरी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसके पार जाके कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, अनसस्टेनेबल, मैनेज नहीं किया जा सकता। और वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, और इससे हो क्या रहा है, जो प्रोडक्टिविटी है वो वीक होता जा रहा है। इम्पेयर्ड मीन्स कमज़ोर पड़ जाना, वीक हो जाना, ठीक है ना। एक लिमिट से ज़्यादा अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो फिर पेड़ों को बढ़ने में भी तो टाइम लगेगा और उनको लगाने में भी तो टाइम लगेगा। फिशिंग अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा कर रहे हैं तो फिशिंग का प्रोडक्शन होने में भी तो टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, सिस्टम बैठता जा रहा है। When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands and croplands deteriorate. ऐसे करने से क्या हो रहा है, फिशरीज जो हैं वो ठप बैठ जा रही हैं, जंगल के जंगल गायब हो जा रहे हैं। जो ग्रासलैंड जहाँ पे दूर दूर तक हरियाली देखने को मिलती थी, अब वो एकदम बंजर सूखी ज़मीन होती चली जा रही है। क्रॉपलैंड्स जो हैं, फसल जो है वो ख़राब होती जा रही है, उनकी स्थिति ख़राब हो रही है। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे। अब आज के ज़माने में हम प्रोटीन की बात करते हैं, आज के ज़माने में हम प्रोटीन इनटेक की बात करते हैं, और इस प्रोटीन इनटेक के चक्कर में हम लिमिट से ज़्यादा फिशिंग करना शुरू कर दिए हैं। लिमिट से ज़्यादा हम मछलियों को पकड़ना और उनको यूज़ करना शुरू कर दिए, और ये बहुत आम बात है। In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. और यहाँ तक कि जो गरीब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जंगलों को क्या कर दिया जा रहा है, डेसिमेट मीन्स टू डिस्ट्रॉय, नाश कर देना। क्यों नाश कर दिया जा रहा है, क्यों पेड़ों को काटा जा रहा है, क्यों जंगल ख़त्म हो जा रहे हैं, लकड़ियों के लिए, ठीक है। लकड़ियों की ज़रूरत क्या है, फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए। In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. और कई देशों में तो कई जगहों पर तो ये आग जलाने के लिए जो लकड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं कि जिस बर्तन के अंदर जो खाना आप पकाते हो, ठीक है, वो खाना भी सस्ता है उन लकड़ियों से जिन लकड़ियों की मदद से वो खाना पकता है, ठीक है ना। यानी खाना भी, भोजन भी सस्ता है लकड़ियों से, लकड़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मीन्स जहाँ पे हाई रेगुलर रेनफॉल होता है, ठीक है। तो डॉक्टर मायर्स का कहना ये है कि जिस तरीके से ये फॉरेस्ट हम ख़त्म कर दे रहे हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग, सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ आर फेसिंग एक्सटिंक्शन मीन्स विलुप्त हो जाना। बहुत से ऐसे प्रजातियां हैं, बहुत से ऐसे जानवर हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, जिनका जो है मतलब उनका जो है लाइफ ही ख़त्म हो जा रही है, विलुप्त हो जा रहे हैं। वो कुछ सालों बाद शायद उनको देखने को भी नहीं मिलेगा। तबाही इस तरीके से हो रही है। It has been well said that forests precede mankind, deserts follow. ठीक है, वंडरफुल लाइन। फॉरेस्ट पहले आता है, फिर मैनकाइंड आता है, और फिर मैनकाइंड के बाद क्या आता है, डेजर्ट आता है। कहने का मतलब यह है कि पहले जंगल थे, फिर इंसान आया, फिर इंसान ने उन जंगलों को किस में बदल दिया, डेजर्ट्स में बदल दिया, रेगिस्तान में बदल दिया उसको। द वर्ल्ड्स एंशिएंट एक्सक्यूज मी, द वर्ल्ड्स एंशिएंट patrimony of tropical forests is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. ठीक है, the world's ancient patrimony means what, legacy, विरासत जिसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट हैं ये बहुत हमारी इस धरती, हमारे प्लैनेट अर्थ का जो हमारा जो प्लैनेट है अर्थ का, उसकी बहुत बड़ी विरासत है ये फॉरेस्ट। बट ये अब क्या हो रहा है, इरोडिंग मीन्स व्हाट, टू गेट डिस्ट्रॉयड स्लोली, धीरे धीरे जो है खत्म हो रहा है, नाश होता जा रहा है।
कैसे नाश हो रहा है देखिए, रेट क्या है उसका, 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर, एक साल में लगभग 40 से 50 मिलियन एकड़ फॉरेस्ट क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेट अस सी दैट। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। हम सब जानते हैं डंग जो होता है, खाद, जो कि एक बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र माना जाता है, नेचुरल फर्टिलाइज़र माना जाता है सॉइल के लिए, ठीक है, मिट्टी के लिए नेचुरल फर्टिलाइज़र माना जा रहा है। जिस तरीके से हम खाद को यूज़ कर रहे हैं, जला रहे हैं अपने पर्पस के लिए, चाहे वो कुकिंग के लिए हो, चाहे और किसी पर्पस के लिए हो, वो भी क्या हो रहा है, हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं इस धरती का। The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. And according to this World Bank, उनका कहना है कि जिस प्रकार से लकड़ियों की खपत हो रही है, जिस प्रकार से खाना बनाने के लिए लकड़ियों को काटा जा रहा है, जिस प्रकार से पेड़ों को काटा जा रहा है, 2000 तक उस डिमांड को अगर हमें वाकई में पूरा करना है तो हमको लगभग 5 गुना ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, तब जाके वो स्थिति बराबर हो सकती है। 5 गुना ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। दिस इज द कंडीशन, यू नो। जेम्स स्पेट, the president of the World Resources Institute, said the other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. So जो president हैं जेम्स स्पेट वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के, he is saying that हम ये कहते हैं कि हर सेकंड हम 1 एकड़ फॉरेस्ट खो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, हम हर सेकंड 1.5 एकड़ फॉरेस्ट खो रहे हैं। Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country. But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. ठीक है, हमारा जो देश का संविधान है उस आर्टिकल 48A में लिखा हुआ है कि जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, दे विल स्ट्रगल, दे विल वर्क हार्ड, वो पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। एंडिवर का मतलब क्या होता है, पूरी जी जान से वो इस बात का ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे कि वो जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, और जो वाइल्ड लाइफ है हमारी कंट्री की उसको प्रोटेक्ट करें और इम्प्रूव करें, उसकी रक्षा करें। बट वॉट कॉजेज एंडलेस एंग्विश, एंग्विश मीन्स वॉट, मेंटल पेन, ठीक है, जो बहुत दुख होता है दिल में, वो इस बात का होता है कि इन आवर कंट्री लॉज आर नॉट रिस्पेक्टेड, कानून कोई भी नहीं मानता, और नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया, ना ही कानून को पालन कराने का कोई मजबूत हमारे पास ढांचा है, हम ऐसे भी नहीं करा पाते हैं, कानून का मजाक उड़ाया जाता है हमारी देश में। फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन says that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the constitution. और वो कहते हैं कि हमारे संविधान में जातिवाद, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर, जो बंधुआ मजदूरी है, जो अमीरी गरीबी वाली बात है, जो ऊंच नीच की बात है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज़ हैपनिंग, अभी भी है ना, संविधान बनने के 44 ईयर्स के बाद भी ये सारी चीज़ें बड़े खुले तौर पर हमारे देश में देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अ रीसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट एस्टिमेट्स कमिटी हैज़ हाईलाइटेड the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades, ठीक है। और एक रिपोर्ट जो कि पार्लियामेंट्स एस्टिमेट कमेटी ने रखा है सामने, उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि पिछले जो 4 डिकेड्स, लगभग 40 सालों में जिस प्रकार से जो फॉरेस्ट, हमारे देश की जो फॉरेस्ट हैं, उनका जो कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन, कैटास्ट्रोफिक मीन्स डिस्ट्रक्टिव, है ना, बहुत बुरी तरीके से जिस तरीके से विनाश हुआ है हमारे देशों की फॉरेस्ट का, वो पहले कभी नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू ए रिलायबल डेटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ अ ईयर, और हमारे देश में हर साल लगभग 3.7 मिलियन एकड़ फॉरेस्ट हम खो रहे हैं।
Large areas officially designated as forest land are already virtually treeless. एक समय जो बड़े बड़े एरियाज जो कि जंगल घोषित हुए थे, जंगल थे, वो आज क्या हो गए, ट्रीलेस हो गए, वहाँ एक भी पेड़ मौजूद नहीं है. The actual loss of forests is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. So here it is said that if we talk about the real loss, if we talk about the actual loss of these forests, it is 8 times more than what the government statistics indicated. सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो कम है, लेकिन सही मायने में ये 8 गुना ज़्यादा बड़ा नुकसान है फॉरेस्ट के लिए. A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. So the United Nations, they went for a survey, and that was in fact a 3-year study, और जहाँ पर सैटेलाइट और ड्रोन की मदद से फोटोग्राफी किया गया कई देशों में, और ये पाया गया कि बहुत से देशों में नियर अबाउट 88 कंट्रीज़ जो थी जहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत ही डिटोरिएटिंग कंडीशन में था, जहाँ पे बहुत बुरी स्थिति एनवायरनमेंट की थी. There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society. It took mankind more than 1 million years to reach the first billion. That was the world population around the year 1800. So here the writer says that एक जो सबसे बड़ी वजह है जो हम ह्यूमन सोसाइटी जो हम बिगाड़ रहे हैं ना, डिस्टॉर्टिंग मीन्स यू नो टू चेंज इट, बिगाड़ना, जो फ्यूचर हम अपना बिगाड़ रहे हैं, इसका सबसे बड़ी वजह ये है पॉपुलेशन. ओके, जिस तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, इसकी वजह से हम जो आने वाला भविष्य है उसको बिगाड़ रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं. इट टुक मैनकाइंड मोर देन 1 million years, ओके, to reach the first billion. That was the world population around the year 1800. 1800 के समय में वर्ल्ड पॉपुलेशन में इतनी तेज़ी नहीं थी. ओके, और इट टुक मैनकाइंड मोर देन 1 million years, लगभग 1 million years उनको लग गया फर्स्ट बिलियन, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने के लिए. लेकिन बिलियन मतलब 100 crores, ठीक है, और मिलियन मीन्स 1 million मीन्स 10 लाख, ठीक है, तो लगभग लाखों साल उनको लग गए, ठीक है, 100 करोड़ तक पहुंचने के लिए उस समय. लेकिन आज की स्थिति क्या है, बहुत तेज़ी के साथ पॉपुलेशन बढ़ रहा है. बाय द ईयर 1900 इस सेकेंड बिलियन वॉज एडेड, और 100 सालों में लगभग 100 करोड़ लोग और जुड़ गए, ठीक है. एंड द 20th century हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन, और 20th सेंचुरी में 20वीं शताब्दी में लगभग 350 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो हैं इस धरती पे और नए जुड़ गए. द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन. सो दिस आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1994. ये 1994 की बात कर रहे हैं, अभी तो 2020 की बात हम लोग 2020 में है. तो उस समय पॉपुलेशन कितना था, 5.7 बिलियन, नियर अबाउट 570 crores. Okay, every 4 days the world population increases by 1 million. ना देखिए, हर 4 दिन में लगभग दुनिया की जो जनसंख्या है वो 10 लाख बढ़ जाती है ना. 1 million equals to 10 lakhs. Okay, fertility falls as income rise, education spreads and health improves. Okay, सो ये जो जनसंख्या बढ़ रही है, जो फर्टिलिटी जो है बढ़ रही है, ये तभी घटेगी, इसमें गिरावट तभी आएगी व्हेन इनकम राइजेस, ओके, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स. जब लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, लोगों को जागरूकता लोगों में फैलाई जाएगी शिक्षा के प्रति और इनकम के प्रति और जनसंख्या के प्रति, तभी जाकर ये जनसंख्या में गिरावट देखी जा सकती है. Thus development is the best contraceptive. और इस
जनसंख्या को रोकने का, कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स रोकना है ना, टू प्रिवेंट इट, टू स्टॉप इट, इसको रोकना है तो सिर्फ विकास के द्वारा ही, जस्ट बाय डेवलपमेंट वी कैन स्टॉप इट. But development itself may not be possible if the present increase in numbers continues. But at the same time, development is not possible if this population keeps on, rising in this way. अगर इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ती रही तो डेवलपमेंट का होना नामुमकिन है, विकास नहीं हो सकता. The rich get richer and the poor beget children, which condemns them to remain poor. So what is happening? The rich people, they are getting richer and richer day by day, and the poor, they are giving life to children. Okay, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं, ठीक है, और जितने ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, what is happening? They are becoming more poorer and they are becoming poorer and poorer. वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है. More children does not mean more workers, merely more people without work, ठीक है. सो जो पहले लोगों की ये सोच थी, पीपल दे हैड दिस माइंड सेट, अर्लियर दे हैड दिस माइंड सेट दैट इफ़ वी हैव मोर चिल्ड्रन विल हैव मोर अर्निंग हैंड्स, ठीक है, अगर हमारे ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा कमाने वाले होंगे और हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे. ऐसी सोच लोगों की पहले हुआ करती थी, बट दिस इज़ नॉट द फैक्ट. पर सच्चाई ये है, अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो ज़्यादा बेरोज़गार बच्चे बनेंगे, क्योंकि वी डोंट हैव वर्क एक्चुअली, और ज़्यादा लोग अगर पैदा होंगे तो क्या होगा, वो बिना काम के ही रह जाएंगे. इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरीली स्टेरिलाइज्ड, बट देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोएर्शन, ठीक है. सो यहाँ पे एक और बात कही जा रही है कि हम जानवर की तरह इंसानों को स्टेरलाइज नहीं कर सकते. स्टेरलाइज का मतलब क्या होता है? उनको बच्चा पैदा करने से रोकना, और ऐसा कुछ बॉडी के अंदर ऐसे सिस्टम कर देना, ठीक है, जिससे वो और आगे बच्चे प्रोड्यूस ना कर पाए. तो जानवरों पे तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन इंसानों पर इस तरीके की चीज़ें करना असंभव नहीं है, मीन्स सही नहीं है. बट देर इज़ नो ऑल्टरनेटिव, लेकिन कोई रास्ता भी नहीं है, देर इज़ नो ऑप्शन, कोई विकल्प भी नहीं है, ठीक है. एंड वी हैव टू डू दिस विद दिस एलिमेंट ऑफ कोएर्जन. कोएर्जन मीन्स फोर्सफुली, हमें ज़बरदस्ती करना ही पड़ेगा, बिकॉज वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग नहीं हो पा रही. वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग मीन्स खुद लोग आगे आकर कहें कि हाँ ठीक है, हम अपनी इच्छा से ये बात कह रहे हैं कि हम और फैमिली बढ़ाना नहीं चाहते, और हम नहीं चाहते कि अपनी फैमिली और बढ़ाएं, लेकिन लोग खुद आगे आते ही नहीं हैं. तो मजबूरी है कि हमें फोर्सफुली, कोएर्जन मतलब फोर्सफुली जो है उनको स्टेरलाइज करें, ठीक है, उनको बच्चा पैदा करने से रोकें. द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी. सो ये हमारे सामने दो विकल्प हैं, या तो हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें और परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी. परपेचुएशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉवर्टी, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गरीबी 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी. सो वी नीड टू मेक अ चॉइस. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 million टुडे, ओके, more than the entire populations of Africa and South America put together. So हमारे देश की जो population है वो यहाँ तक कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका से भी ज़्यादा है. It is near about 920 million. No one familiar with the condition in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. So अगर यही condition बनी रही तो वो दिन दूर नहीं है कि लोग अपने अपने घरों में ही जो है भूखे मर जाएंगे, जब तक कि हम खुद इस जनसंख्या को रोकना एक सबसे अहम मुद्दा ना बना ले. हमारी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी? इट मस्ट बी हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन. ओके, हटमेंट्स का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ हट्स, ठीक है, यानी मतलब हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस घरों में रह रहे हैं, वहीं पर भूखे मर जाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ काम नहीं रहेगा. We would not have any work to do. For the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just of the people but of the planet. But this is the first time after this movement, after this green movement, the writer is saying that we are seeing a transcending concern. Okay, transcending means beyond the limit. Concern means what? एक चिंता. पहली बार लोगों में
एक चिंता देखने को मिल रही है। लोग फिक्रमंद हैं किसके प्रति? टुवर्ड्स आर अर्थ, अपने धरती के प्रति। ट्रांसेंडिंग मीन्स गोइंग बियॉन्ड द लिमिट। लोग बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं धरती को लेके। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल, इंसान कैसे इस धरती पर जीवित रहेगा इसके लिए नहीं चिंतित हो रहे हैं, बट ऑफ द प्लैनेट, लेकिन अपने इस धरती को कैसे बचाएं, अपने इस धरती की रक्षा कैसे करें, इसको लेके लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग चिंतित हो रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, दिस इज हैपनिंग। We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. अब हमने भी क्या किया है, अपनी जो हमारी अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस मीन्स हमारा अस्तित्व है इस धरती पर, अब हम सिर्फ उसको नहीं समझ रहे, हम उसको पूरा एक पैकेज की तौर पे ले रहे हैं। हम ये नहीं मान रहे कि हम जिंदा हैं, हम खा रहे हैं, ये पर्याप्त है, नहीं, हम ऐसा लेके नहीं चल रहे। हम होलिस्टिक व्यू कर रहे हैं। होलिस्टिक व्यू मीन्स व्हाट? हम सारी चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं कि हमसे जुड़े हुए लोग, उनकी क्या स्थिति है, हम जिनसे जुड़े हुए हैं उनकी क्या हालत है, हम सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर आगे बढ़ रहे हैं। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आर डिमाइस, ठीक है, इट इज़ आर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, जो वातावरण में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ये इस बात का संकेत नहीं है कि हमारा क्या हो रहा है, डिमाइस। डिमाइस मीन्स डेथ, मतलब ये हमारे मौत का कारण बन रहा है, ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं। बेसिकली ये क्या है, इट इज़ आर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, ठीक है ना। ये एक प्रकार का पासपोर्ट है हमारा फ्यूचर के लिए। कहने का मतलब, अगर इस सिचुएशन को हम अच्छा कर देंगे, अगर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे, इफ़ वी रियली टेक गुड केयर ऑफ दिस अर्थ, what will happen, it will work as a passport for the future generation। आने वाले लोगों जैसे पासपोर्ट अगर हमारे पास है, okay, so we can go, you know, we have that, you know, authority, not the authority, we are free to go anywhere, because पासपोर्ट है तभी हम आगे जाके वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। तो वैसे ही अगर हम इस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सीरियसली लेते हैं, तभी हम एक अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे। द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन has ushered in the era of responsibility। अब ये जो नई सोच, दुनिया में नई सोच पैदा हुई है, ग्रीन मूवमेंट, ये एक प्रकार से अशर्ड मीन्स टू शो, ये दिखा रही है, क्या दिखा रही है, द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों में जिम्मेदारी की भावना आ रही है, लोगों के अंदर एक जिम्मेदारी का भाव आ रहा है, ठीक है। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts, okay। तो अब हम दुनिया को एक मान के चल रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले हम सब भागों में बटे हुए थे। we were you know, we were distributed or we were divided in parts। हम अपना अपना मान के चलते थे, हम अपना और अपना परिवार का सोचते थे, अपने घर का सोचते थे, अपने देश का सोचते थे, अपने समाज का सोचते थे। बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, नाउ वी आर टेकिंग दिस होल अर्थ एज वन, और अब हम उसको पार्ट में नहीं सोच रहे, बल्कि एक पूरा एज अ होल हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन द न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ इंडस्ट्रीज, दे हैव टू, यू नो, प्ले अ वेरी मेजर रोल। अब जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be company's chief environmental officer. So, talking about this chairman of this company DuPont, Mr. Edgar S. Woolard. So we all know that the topmost position in a office or in a company is चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा पोस्ट जो होता है वो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। लेकिन ये जो है मिस्टर एडगर एस वुलार्ड, ये कहते थे कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं हूँ, बल्कि चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर हूँ। कहने का मतलब, मेरी जो इंडस्ट्री है, मेरी जो कंपनी है, वो कुछ भी पैदा करे, कुछ भी मैन्युफैक्चर करे, कुछ भी बनाए, मुझे इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा एनवायरनमेंट कहीं हार्म नहीं हो रहा हो। अगर ऐसी सोच हर इंडस्ट्री के लोग अपनी दिमाग में रख लें तो बहुत बदलाव हो सकता है। ही सेड
Our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. उनका ये कहना है कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि एनवायरनमेंट को हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे और एनवायरनमेंट को हम जो बैलेंस है उसको बनाए रखे हैं. Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitious word. है ना? Felicitious words. No generation has a freehold on this earth. So talking about Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, she was the prime minister of England. तो उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो आज बहुत फेमस है. उनके वो शब्द जो हैं बहुत ही एक स्पीच है जहाँ पर उन्होंने बहुत ही फेमस वर्ड्स उन्होंने बोली थी. और वो वर्ड्स क्या था? उन्होंने बोला था, नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ. इट मीन्स कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जो इस धरती पर जीवित है वो ये ना समझे कि ही इज़ हैविंग ए फ्री होल्ड. फ्री होल्ड मीन्स परमानेंट ओनरशिप. ठीक है, परमानेंट ओनरशिप. वो ये ना माने कि मैं इस धरती पर ये चीज़ का मैं परमानेंट मालिक हूँ. ठीक है. ऑल वी हैव इज़ ए लाइफ टेनेंसी विथ ए फुल रिपेयरिंग लीज. ओके, उनका ये कहना था कि हर इंसान को ये मान के चलना चाहिए कि वो इस धरती पर एक किराएदार की तरह रह रहा है. टेनेंसी मीन्स व्हाट? किराएदार. वो ये ना माने कि मैं यहाँ पे एक मकान मालिक की तरह इस धरती पे जी रहा हूँ. वो ये मान के चले कि मैं किराएदार की तरह यहाँ पे रह रहा हूँ. और किराएदार क्या देता है? हर महीने किराया देता है. जैसे वैसे ही वी हैव टू फुल रिपेयर लीज. और हमारा किराया क्या है? इस धरती को रिपेयर करते रहना, समय समय पर धरती को ठीक करते रहना, बनाते रहना, एनवायरनमेंट को बनाए रखना, इकोसिस्टम को मैनेज करना. इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children. और मिस्टर लेस्टर ब्राउन इन हिज वर्ड्स वो क्या कहते हैं? ही सेज दैट हमें हमारे ये जो धरती है, हमारे पूर्वजों से, हमारे बड़े बुजुर्गों से हमें ये धरती विरासत में नहीं मिली है, बल्कि ये धरती हमने किससे ली है? अपने आने वाली जनरेशन, हमारी बच्चों से ली है. यानी हमें लौटाना है अपने बच्चों को. और जब हमको बच्चों को लौटाना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कैसी धरती उनको लौटा रहे हैं. क्या जीने लायक धरती हम उन्हें दे रहे हैं, या फिर एक ऐसी धरती दे रहे हैं जिससे आगे की भविष्य या आगे की पीढ़ी उस धरती पर जी ना पाए. So this was the chapter, beta. I hope, my dear children, you have understood this chapter. Still, if you have any confusion, please feel free to ask questions. Comment section में आप answer पूछ सकते हैं if you have any doubt. So that was all from this chapter. I hope you have understood it. Thank you. Take care, and God bless you.